Hello friends, welcome back to my YouTube channel, that is Engineer and Teacher Classes. And today's our topic is the single phase half bridge inverter with R loop. Okay, so let's start the topic. Now, in the previous section we have studied about the basic of inverter. In the basic of inverter, we have studied that when we give the fixed DC to the inverter, we will get the variable AC, but the AC is your AC is your the square wave. Okay, you studied in this previous lecture that I uploaded. Now we are going to study first the single phase half bridge inverter, and the consider is R loop. So this is the bridge diagram of the single phase half bridge inverter. In half bridge inverter, we have two thyristors and the two diodes. The diodes are connected in anti-parallel to the thyristor. You can see here that this is the thyristor and this is your diode connected in anti-parallel. Okay. Now this is your load. That is the load is R. We consider the polarities of the load voltage. Here is positive, negative, and this is your flow of current. And here I am giving the input supply, that is VDC by 2 and VDC by 2. And this is your neutral point, or we can say O point. Okay, so this is the basic circuit diagram for the single phase half bridge inverter with two thyristors, two anti-parallel diodes, and the input supply, that is VDC by 2, VDC by 2, and the load is R. Okay, one thing is remember to hear that the diode is जो आपने यहाँ पे यूज किया गया है, इट इज नॉट यूज इन द आर लोड केस. ओके, आर लोड के केस में आपका डायोड यूज नहीं आता है. क्यों नहीं आता है इसको हम आगे देखेंगे अभी. ठीक है. नाउ हियर इन द फिगर यू कैन सी दैट इज द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, आउटपुट करंट वेवफॉर्म, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर्स एंड द वोल्टेज अक्रॉस डायोड. ठीक है, तो ये वेवफॉर्म्स की हमें स्टडी करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, in the first case we have studied the mode. In the mode wise study कर रहे हैं हम. ठीक है. In the mode 1 that I am taking between 0 to t by 2, between 0 to t by 2. ठीक है. What I have done, I triggered the thyristor T1. ठीक है, हमने thyristor T1 को क्या किया, ट्रिगर किया है by giving the gate supply. When this thyristor T1 is triggered, what happen, this will become short circuit. This terminal is connected to this terminal. That means I can say this positive terminal of the load is connected to the positive terminal of the battery, and this negative terminal of the load is connected to the negative terminal of the battery. So I can say the load voltage, जो आपका output voltage है वो कितना हो जाएगा, VDC by 2. Okay, so here you can see that for 0 to t by 2 your output voltage is VDC by 2. Now at t by 2, okay, at t by 2 T1 is force commutated. ठीक है, आपको पता है फोर्स कम्यूटेशन का मतलब क्यों, बिकॉज आपको पता है कि थायरिस्टर कैन बी टर्न ऑफ बाय व्हेन देयर इज अ रिवर्स बायस और व्हेन द करंट थ्रू इट इज लेस देन द होल्डिंग करंट. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सप्लाई क्या कर रहे हो, इनपुट में डीसी दे रहे हो. तो आप इनपुट में जब आप डीसी दे रहे हो तो यू कैन नॉट सपोज कि यहाँ पे आपको रिवर्स बायस होगा थायरिस्टर. ठीक है ना, थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस के लिए आपको रिवर्स साइकिल मिलेगी नहीं. तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स कम्यूट करना पड़ेगा. तो फोर्स कम्यूट किया हमने T1 को और T2 को क्या कर दिया, टर्न ऑन कर दिया. तो इन द मोड 2 दैट इज बिटवीन T2 टू T, T2 क्या हो गया आपका, टर्न हो गया. T by 2 से T, T2 आपका क्या हो गया, टर्न हो गया. तो व्हेन T2 इज टर्न ऑन तो क्या होगा आपका, दिस विल बिकम शॉर्ट सर्किट. एंड दिस टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लोड. आई कैन से दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द लोड connected to the negative terminal of the battery, and this negative terminal of the load is connected to the positive terminal of the battery. What can I say, the voltage across the load is minus VDC by 2. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, माइनस की VDC by 2. नेक्स्ट द साइकिल इज रिपीटेड सर. ओके, so this is the output voltage waveform for the single phase half bridge inverter. और आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था कि व्हेन यू गिव द फिक्स्ड डीसी टू द इन्वर्टर यू विल गेट द वेरिएबल एसी बट द वोल्टेज वेवफॉर्म इज इन स्क्वायर वेव. एंड
and the magnitude of the voltage wave that will get in the output is equal to the input voltage. ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना दिया था VDC/2, तो आपको आउटपुट में भी जो वोल्टेज अल्टरनेट हो रहा है दैट इज अल्टरनेटिंग बिटवीन प्लस VDC2 माइनस VDC/2. ओके, so this is your what the output voltage waveform. Now about the current. अब हम करंट की बात करते हैं. ठीक है, तो जब करंट की बात करते हैं तो व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब आपका T1 ऑन होता है, when the T1 is turned on, so what we have seen that this is current is flowing like this. तो the current आपका उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है जिस डायरेक्शन में हमने अज्यूम किया था. ठीक है ना, बट द करंट क्या होगा आपका I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R. I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई R. ओके, तो R क्या है, V नॉट क्या था आपका VDC/2 एंड द R, तो ये कितना हो जाएगा 2 VDC/2 R. ठीक है ना, तो दिस इज योर करंट. तो क्या होगा आपकी मैग्नीट्यूड जो वोल्टेज है, सॉरी जो वेवफॉर्म है आपकी करंट की, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, बट चेंज क्या होगा सिर्फ, द चेंज इज दैट यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा वोल्टेज की वेवफॉर्म के रेस्पेक्ट में. ठीक है, नाउ बात करते हैं व्हेन T2 इज ऑन. तो व्हेन T2 इज ऑन, तो जब T2 ऑन होता है तो क्या होगा, दिस विल शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट होता है, एंड this positive terminal is connected to the negative terminal of the battery, and this negative terminal is connected to current. कैसे फ्लो होता है प्लस से नेगेटिव, तो करंट कैसे फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस तरीके से. ठीक है, तो आपने जो डायरेक्शन अज्यूम की थी उसके नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना करंट, तो दैट्स व्हाई द करंट इज नेगेटिव इन दिस पोर्शन, एंड द करंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज VDC/2R. ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई. सिमिलरली हियर अगेन द साइकिल इज रिपीट itself. So this is the output current waveform. Now, if someone say to draw the current waveform from T1, अगर आपको T1 के लिए current waveform draw करनी है, that is you can say for the thyristor T1. तो thyristor T1 कब काम कर रहा है, इस पीरियड में and इस पीरियड में. तो T1 की waveform आप बना दोगे, this is for T1 waveform and this is for your T1 waveform. Similarly, if someone say to draw the waveform for T2, तो 1 सेकंड, ये आपका थोड़ा गलत हो गया है ना. आपको T2 की वेवफॉर्म कैसे बनेगी, दिस इन दिस नेगेटिव साइकिल, कैसे बनेगी इसमें, नेगेटिव साइकिल के अंदर. ठीक है ना, तो दिस इज योर T2 वेवफॉर्म. नाउ समवन से अबाउट द वेवफॉर्म फॉर D1 एंड D2. तो आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इन द हाफ ब्रिज रेक्टिफायर D1 एंड D2 इज नॉट कंडक्टिंग फॉर द R लोड. ठीक है, आर लोड के केस में आपके D1 एंड D2 क्या होते हैं, कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, करंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब ध्यान से अगर D1 एंड D2 का यूज आता है, दिस आर द नॉन एज फ्री व्हीलिंग डायोड, और वी कैन से कि ये उस टाइम पे यूज आता है व्हेन देयर इज आर लोड, एल लोड. ठीक है ना, एल लोड के केस में आपका क्या होता है कि आपको पता है कि एल लोड के केस में व्हेन थायरिस्टर इज ऑन, इंडक्टर आपका क्या होता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, एनर्जाइज होता है, एंड व्हेन थायरिस्टर इज टर्न ऑफ, तो वो अपनी क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा. ठीक है ना, तो उस टाइम पे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा क्रॉस द डायोड D1 एंड D2. तो उस टाइम पे डायोड D1 एंड D2 का क्या आता है, यूज आता है. आर लोड के केस में डायोड का यूज में नहीं आता, डायोड इज नॉट कंडक्टिंग इन द आर लोड केस. ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. ओके, so this is the waveform. In this waveform में आपने देखा कि आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म इज सेम as we have seen previous, that is your square wave. Voltage magnitude is VDC/2, current magnitude is VDC/2R. Okay, and this is the thyristor current, and this is thyristor current T2, and the diode current is 0. Now अब हमें क्या करना है, इस वेवफॉर्म का क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, that is your Fourier analysis. Okay, so let's do this. Now analysis of single phase half bridge inverter with R load. तो देखो आपने जब इसका क्या निकालना है, हमें सबसे पहले आरएमएस वोल्टेज, इसका जो आपको आउटपुट में वोल्टेज मिला है उसका. तो आरएमएस वोल्टेज निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको. आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है. सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VDC²/4, और जो ये नेगेटिव में वेवफॉर्म है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, VDC²/4. तो आपको आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है, आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है VDC²/4
for t by 2 out of the total time t. ओके ठीक है, सॉरी इसको सॉल्व करोगे तो VDC स्क्वायर बाई 4 फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड t आउट ऑफ द कंप्लीट टाइम पीरियड t, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको RMS वोल्टेज कितना मिलेगा VDC बाई 2, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जब हमने देखा था, जब आपका इनपुट क्या था VDC था, तो आपको RMS वोल्टेज भी क्या मिल रहा था, आउटपुट में VDC मिल रहा था। Similarly, you can find the output current RMS. Output current RMS, you can easily find the output voltage RMS divided by R. ये आपका हो जाएगा सिंपल, ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। Now the Fourier series. तो Fourier series आप इसकी कैसे लिखोगे? VDC by 2 VDC by n pi sin n omega naught t. अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वहां पे मैंने जो Fourier सीरीज लिखी थी वो लिखी थी आपने 4 VDC, ठीक है ना। वहां पे 4 VDC क्यों लिखा था मैंने, बिकॉज द इनपुट वोल्टेज जो था वो आपका VDC था। नाउ हियर द इनपुट वोल्टेज इज VDC by 2, तो जो आपका मैग्नीट्यूड है वो भी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, बाय द हाफ हो जाएगा। तो वहां पे 4 VDC था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 VDC हो जाएगा। एंड वी कैन, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आपको कि आपकी क्या ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन के केस में आपका an एंड a0 0 हो जाता है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट ओनली bn एंड वी हैव ओनली द ऑड हार्मोनिक, so that's why we represent the Fourier series by giving this formula. Now find the fundamental component. तो fundamental component का मतलब क्या था, put n is equal to 1, तो मैंने क्या करा, इसमें n की जगह 1 पुट करा, तो this is your fundamental component of voltage, जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिला है उसका फंडामेंटल कंपोनेंट है, दैट इज 2 VDC अपॉन पाई sin ओमेगा नॉट t। ओके, अब मुझे इसका RMS निकालना है, तो RMS वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, so easily we can find the maximum value divided by √2, V01n upon √2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 VDC upon पाई। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा √2 VS upon पाई। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, आउटपुट वोल्टेज की फोरियर सीरीज एंड आउटपुट वोल्टेज की RMS वैल्यू। जब हमें ये दोनों चीज पता थी तो हम क्या फाइंड करते थे, डिस्टॉर्शन फैक्टर। तो डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है आपका, V01 RMS डिवाइडेड बाय V0 RMS, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टॉर्शन फैक्टर, ठीक है। हम उससे पहले करंट फाइंड कर लेते हैं। I01t कैसे फाइंड करेंगे, जो V01t मिला था डिवाइडेड बाय R, तो V01t क्या था आपका 2 VDC अपॉन पाई sin ओमेगा नॉट t, उसको हमने क्या कर दिया R से डिवाइड कर दिया, तो दिस विल गिव यू द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट करंट। इसी तरीके से फंडामेंटल कंपोनेंट के RMS वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा √2 VDC अपॉन पाई r। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूं इसको, ठीक है, और आप इजीली पढ़ भी सकते, इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट डिस्टॉर्शन फैक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या है आपका, फंडामेंटल RMS कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट RMS। फंडामेंटल RMS कंपोनेंट क्या था √2 VDC अपॉन पाई एंड RMS V0 RMS क्या था VDC by 2, तो VDC by 2 जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू √2 upon pi, and it is same as we have studied in the previous class for the when जब आपने इनपुट में क्या दिया था VDC दिया था। तो आप इसको देखोगे कि जो डिस्टॉर्शन फैक्टर है एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, ये दोनों आपके सेम है, ठीक है ना, ये आपके सेम है when you give the input to VDC or you give the input VDC by 2, ठीक है, या तो आपने VDC इनपुट में दिया या फिर आप VDC by 2 इनपुट में देंगे, तो दोनों टाइम पे ये आपका डिस्टॉर्शन फैक्टर एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन दोनों ही क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब तक हमने क्या किया, हमने फाइंड किया फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज के बाद में उसके फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, RMS value of the output voltage and RMS value of output current, and then find the distortion factor and then total harmonic distortion. Now next point we have to find, that is average switch current and the RMS switch current. Switch current मतलब thyristor current, okay। तो आपने देखो जब हमने वेवफॉर्म बनाई थी तब आपने देखा था कि इस थायरिस्टर जो है वो आपका T/2 के लिए कंडक्ट कर रहा है, T/2 के लिए कंडक्ट कर रहा था आपका थायरिस्टर T1 एंड नेक्स्ट T/2 साइकिल के लिए आपका कंडक्ट कर रहा था थायरिस्टर T2। तो आप देख सकते हैं वेवफॉर्म में, एक बार मैं दिखा देता हूं, देखो in this period thyristor T1 is conducting and in this period thyristor T2 is conducting। तो अगर मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा कि मुझे करंट मिल रहा है T/2 के लिए कितने में से, टोटल साइकिल T में से, ठीक है ना, टोटल टाइम पीरियड T में से
मुझे करंट कितना मिल रहा है, P/2 के लिए मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, VDC/2 बार। ओके, तो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द एवरेज करंट। तो मैंने क्या माना कि जो मेरा करंट था वही आउटपुट करंट और आपका जो थायरिस्टर करंट है दोनों क्या है, सेम है। तो मैंने आउटपुट करंट को क्या मान लिया, I0 मान लिया। ठीक है ना, आउटपुट करंट इज अज्यूम्ड टू बी I0 and I will get the I0 current for T/2 cycle out of the T cycle for each thyristor, चाहे वो T1 हो चाहे वो T2 हो। ठीक है, when you solve this so you will get I0/2। ओके, यानी आप सिंपली कह सकते हो, एवरेज करंट की बात करें हम, एवरेज क्या होता है, एक थायरिस्टर आपका फुल साइकिल में कितने टाइम के लिए करंट दे रहा है। तो आपका जो एक थायरिस्टर है वो फुल साइकिल के लिए I0/2 टाइम के लिए आपको क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, I0/2 करंट दे रहा है। ठीक है, दिस इज योर एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो आपकी वेवफॉर्म है उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको करंट क्या मिल रहा है, आपको आउटपुट में I0। तो सबसे पहले आपने क्या करा, I0 का स्क्वायर कर दिया। कितने टाइम के लिए मिल रहा है, T/2 के लिए। कितने टाइम में से, T के लिए। और वी कैन से π/2 सॉरी पाई आउट ऑफ द 2 पाई, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको। अगर आप एसी साइकिल में बात करोगे तो हमें पाई साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है आउट ऑफ द कंप्लीट साइकिल इज 2 पाई। ठीक है, देन इसका क्या कर दो, रूट कर दो। तो व्हेन यू रूट दिस यू विल गेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ I0/√2। ओके, so this is your next point. Now next point, now we have to find the power across load due to fundamental। ध्यान से देखना, power across load due to fundamental। तो fundamental power क्या होगी, P01। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, when you put n is equal to 1 this will give you the fundamental power, or you give the fundamental component of each, fundamental component of voltage, fundamental component of current, and this is the fundamental power। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, V01 RMS I01 RMS cos ∅1। यू हैव द आर लोड, आपको पता है यहाँ पे हमने जो लोड अज्यूम किया वो कौन सा आर लोड है। तो आर लोड के केस में cos ∅ कितना होता है, यूनिटी। तो दिस विल गिव यू P01 is equal to V01 RMS into I01 RMS। ठीक है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ये आपकी पावर हो गई। एंड दिस cos ∅1 जो आपका यहाँ पे cos ∅1 है, दिस इज नोन एज फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, यानी कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, दिस विल गिव बाय द cos ∅, and this is known as fundamental displacement factor। Now the last point is or we can say next point is fundamental average and RMS value of switch current। ठीक है, तो अभी जो हमने पहले फाइंड किया था वो पहले फाइंड किया था कम स्विच करंट की, जब इससे पहले जो भी हमने फाइंड किया था वो फाइंड किया था कंप्लीट स्विच करंट की। ठीक है ना, कंप्लीट स्विच करंट, ना कि फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होगा आपका, देखो ये आपका स्विच करंट है, तो ये आपको स्विच करंट मिल रहा है, तो दिस इज योर डीसी मिल रही है। ठीक है ना, दिस इज योर डीसी का ओ सॉरी स्क्वायर वेव है। अगर आपको फंडामेंटल करना है तो फंडामेंटल क्या होता है, एसी। क्योंकि आप n = 1 पुट कर दोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव साइकिल। मैंने पहले बताया कि इसको थोड़ा रफ कर देना, दिस इज रॉन्ग, ये ऊपर की तरफ नहीं आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना, तो दिस इज एसी। तो मुझे क्या निकालना है, फंडामेंटल करंट निकालना है। तो फंडामेंटल करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, n = 1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हेन पुट द n = 1 तो हमें उस टाइम पे एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो बहुत इजी तरीका है। अगर मैं एक बार वापस वेवफॉर्म दिखाऊं आपको, अगर मुझे यहाँ पे एसी ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, ठीक है, दिस इज योर साइनसॉइडल वेव, तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज द वेवफॉर्म सिमिलरली टू द रेक्टिफायर। कौन सा रेक्टिफायर, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है ना, या हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जब हाफ वेव रेक्टिफायर की आप बात करते हो तो आपको इसी तरीके से आउटपुट मिलता है, ओनली पॉजिटिव साइकिल के अंदर। ठीक है ना, और यहाँ पे आपको नेगेटिव साइकिल में मिल गया आउटपुट। तो दिस इज पॉजिटिव साइकिल आउटपुट है, यानी कि क्या है आपका एक तरीके से रेक्टिफायर कह सकते हो आप इसको ना। तो रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है एवरेज में, दिस सिमिलर वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यू कैन से द एवरेज वैल्यू ऑफ स्विच करंट इज I01 max upon pi and the RMS value is I0 max upon 2। जैसे हमने प्रीवियसली फाइंड की थी, आप उसी तरीके से यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक रेक्टिफायर, अगर आप रेक्टिफायर की वेवफॉर्म आप फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज हियर, द टोटल पावर अक्रॉस लोड। देखो अभी हमने यहाँ जो पावर फाइंड की थी ये थी फंडामेंटल पावर, दैट इज ऑफ n = 1। अगर हम आपको टोटल पावर फाइंड करने के लिए बोले तो आप यू कैन डायरेक्टली राइट
V0 RMS I0 RMS cos phi, जबकि पहले वाले केस में हमने क्या लिखा था 1 V0 1 लिखा था हमने, ठीक है ना, क्या लिखा था V0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा V0 RMS I0 RMS cos phi की वैल्यू 1 हो जाएगी। When you solve this you will get the output power is P0 is equal to VDC square by 4R, ठीक है। तो this much of points you have to calculate in the each rectifier case। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हमने मोड्स में स्टडी करी, देन उसकी वेवफॉर्म्स फाइंड करी, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म, आउटपुट करंट की वेवफॉर्म, थायरिस्टर की वेवफॉर्म एंड डायोड्स की वेवफॉर्म। देन उसके बाद में हमने इसका एनालिसिस किया। इन दिस एनालिसिस वी हैव डन फोरियर सीरीज एनालिसिस। देन उसके बाद में हमने आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकाली, फंडामेंटल की आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू निकाली, स्विच करंट की आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू निकाली, स्विच फंडामेंटल करंट की आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू निकाली, टोटल फंडामेंटल पावर कैलकुलेट किया एंड देन टोटल पावर अक्रॉस लोड फाइंड किया, ठीक है ना। तो दिस मच ऑफ टॉपिक यू हैव टू पॉइंट्स यू हैव टू फाइंड इन दिस कैलकुलेशन, ओके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड if any doubt post in comment।